दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम एलिमेंट्स के हाइड्रोक्साइड्स की बात करेंगे। हाइड्रोक्साइड एक हमारे पास आयन है जो सॉल्यूशंस में एग्जिस्ट कर सकता है। इट इज ए पार्ट ऑफ मैनी कंपाउंड्स। इट इज मेड अप ऑफ टू एटम्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, and this aggregation of two atoms carries one unit negative charge, OH negative ion, right? And the general formula of hydroxides is E is any element, OH n. N is a number, mostly the value of n is from 1 to 4. In maximum cases or in case of bases, the compounds which are basic in nature, n is from 1 to 2. 1 to 2. For example, all the elements of this S block form hydroxides with n1 and 2. First group elements we have this formula is your EOH, sodium hydroxide. Elements of second group form hydroxide with formula EOH2. Example is beryllium hydroxide, which is M4 taric. Then we have this D block elements which form hydroxides. The value of N may be 1, 2, 3. Then we have the F block elements. They form hydroxide with N 2 or 3. Then we have the P block elements. So P block elements form your hydroxide with N, that's again 1, 2, 3, 4. Here the value will be 4. For example, here we take this beryllium hydroxide, then we have the magnesium hydroxide. Magnesium is the second member of second group. Then we have the boron hydroxide. Okay, please. Let's discuss nature of some hydroxides. You see, it is basic in nature, it is acid or acidic in nature, it is amphoteric. So why any hydroxide acts as acid or base or as an amphoteric compound. Okay, please. So we have here this, let's say, element O, then H bond. So if here first this bond breaks, means compound releases H positive OH negative ion, and we say it is a base or basic in nature. But if this OH bond breaks, what we say, the compound is, what we get, EO negative and H positive. Compound is acidic in nature, or compound is acid. The example is HOCl. Here this, okay, please, OH bond breaks and we get H positive ion, and this compound is acid or acidic in nature. But you see, please, this compound is acid or acidic in nature, but it does not say release H positive ions. यहाँ पर है क्या, आपका ये जो बॉन्ड है BOH. And why any compound or why any hydroxide
releases H positive or OH negative ions. It depends on two things. First, if this your element is highly metallic, and it is attaches to one OH or two OH. Compounds or hydroxides are mostly bases or basic in nature. But if the electronegatividity of this element is, let's say, more than 1.5, and the value of your N here, value of N is say 3 or 4, लेकिन इस दोनों में कोई कंडीशन हो सकती है. जैसे यहाँ पर क्या है, इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्लोरीन की ई की कितने काफी ज्यादा है 3, इसलिए ये एसिड है, राइट. यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मैग्नीशियम की वो काफी कम है, लेट्स से 1.2, इसलिए ये बेस है. यहाँ पर ये बेस है. ये कंपाउंड आयनिक है, Mg2 पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पर, and it releases OH negative ions immediately on putting in water. But here, in case of beryllium hydroxide, you see please here, beryllium hydroxide, the electronegativity of beryllium is your 1.5, so it functions as acid as well as base. ये दोनों काम करता है प्लीज. ये एम्फोटेरिक कंपाउंड है ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड. सो मैंने बताया कि यहाँ पर आपका ये जो कंपाउंड है, राइट, EOHN, it will act as base when value of your N is, let's say, 1, okay please, 1 and 2, and electronegativity of the elements here is, let's say, 1.2 or 1.3 or below 1.3, okay. And this compound is एम्फोटेरिक. कैसे एम्फोटेरिक है ये हमारे पास क्या है, एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है. कौन सा एसिड है, लेट्स से HCl से इसको रिएक्ट करते हैं. HCl से किसको, बेरिलियम जो आपका ऑक्साइड है यहाँ पे, लेट्स रिएक्ट विद HCl. ये हमारे पास क्या HCl से रिएक्ट करेगा और ये बेस का काम करता है. यहाँ पर व्हाट वी गेट द सॉल्ट, बेरिलियम क्लोराइड प्लस वाटर. And it is a very important reaction between an acid and a base. And acid base, इसके साथ साथ क्या है, it can react with bases like sodium hydroxide. ये आपके पास क्या जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेस, उनसे रिएक्ट कर सकता है. बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो आपका है ये BeOH 2 plus 2 NaOH, and what we get, that is your Na2 and BeOH4. ऐसे ही आपका बन जाता है इसका कंपाउंड सोडियम बेरिलेट. यहाँ से it breaks into further water etc. But this reaction shows the acidic nature of beryllium hydroxide. BeOH2 reaction is strong base sodium hydroxide, and here it reacts with strong acid HCl, and this reaction proves the basic nature of beryllium hydroxide. Now BeOH3 is a very strange case of this hydroxide of boron, which is acidic but very unusually. कैसे ये एसिड का काम करता है प्लीज. जैसे इसमें पानी में डालते हैं प्लीज, ये क्या है, H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करा खुद. जिस हमारे पास क्या है BeOH3 है, इसको हम पानी में डाल देंगे, BeOH3 H2O, यहाँ से क्या करेगा, ये पानी में से क्या है, ये H पॉजिटिव रिलीज कर देगा. यहाँ से पानी में से H पॉजिटिव रिलीज करेगा, ऐसे करके H पॉजिटिव एंड POH4 नेगेटिव. ये आपको क्या है, सी बन जाएगा आपका ये कॉम्प्लेक्स एक एनायन.
ओके प्लीज, मैं कहेंगे ये जो कंपाउंड है खुद क्या है, ब्रेक नहीं करता है पानी में डालने के बाद, बल्कि वाटर मॉलिक्यूल वैसे ब्रेक करेगा और वाटर पानी के अंदर क्या होगा, फिर ये H पॉजिटिव आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो OH नेगेटिव आयंस से ज्यादा हो जाता है, एंड इन दिस फैशन it behaves as an acid, so it forms complex ion with OH negative ion. OH negative ion से मिलकर क्या है, ये एक complex आयन बना देगा और वहां से H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा, तो H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा, इसलिए ये एसिड होता है, इसका नाम क्या है, बोरिक एसिड और ऑर्थोबोरिक एसिड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जितने भी हाइड्रोक्साइड्स हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, क्या हमें बताया कि ज्यादातर क्या है वो बेसिस हैं, ज्यादातर अधिकतर बेसिस हैं। तो बेस क्यों है, कौन से बेस होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की क्या होगी, कम होगी, कितनी, लेट्स से हम रफली बोल देते हैं कि 1.3 से कम होती है। ओके, ये पहला हमारे पास क्या है, रीजन है, और n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर n जो आपका है, यहाँ पर ये n की वैल्यू क्या है, कितनी होती है, 1 या 2 होती है। तो ये दो बातें आपने वहां पर देख ली है। तो ये कुछ उसमें जैसे ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, ये एम्फोटेरिक है, क्योंकि यहाँ पर बेरिलियम बहुत ही क्या है, छोटा कैटायन है, Be2 पॉजिटिव। ओके, और ये जो बॉन्ड है वहां पर क्या है, को काफी ज्यादा क्या है, कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। बेरिलियम ऑक्सीजन जो बॉन्ड है, इट इज हाईली कोवलेंट इन नेचर, इसलिए क्या है यहाँ पर बेरिलियम ऑक्सीजन या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों बॉन्ड्स के ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी लगभग बराबर हो जाती है, लगभग बराबर, इसलिए क्या है, ये एम्फोटेरिक है। लेकिन यहाँ देखिए प्लीज, जो आपका ये कंपाउंड है, इसमें हमने बताया कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यहाँ पर क्या है, ये 2 है, यहाँ पर 2.1 है, यहाँ पर ये 3.5 है। ओके प्लीज, तो इन दोनों बॉन्ड क्या है, लगभग बराबर मात्रा में पोलर है, बराबर मात्रा में पोलर है, काफी ज्यादा पोलर है लेकिन बराबर मात्रा में है। और कंपाउंड क्या है, एज होल क्या है, ये नॉन पोलर कंपाउंड है, जो बोरिक एसिड है ये नॉन पोलर कंपाउंड है। और यहाँ पर ये BO बॉन्ड और OH बॉन्ड पानी में डालने पर दोनों नहीं टूटते हैं, दोनों ब्रेक नहीं करते हैं पानी में डालने पर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। लेकिन क्या है, ये H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को इस रिएक्शन की वजह से OH नेगेटिव आयन से ज्यादा कर देता है ये कंपाउंड, इसलिए ये एसिड का काम करता है। तो इस तरह से हम क्या है हाइड्रोक्साइड्स को डिस्कस कर सकते हैं। ओके प्लीज, थैंक्स।